the chapter number 19, index numbers. Okay. This is an overview about the index number that we have to start with this types, and this is the hierarchy view of the index number. Okay. Each and every topic we will cover over here. Okay. So here the first thing is the introduction. Now definition सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग. An index number is a ratio of two or more time periods are involved, one of which is the base time period. The value at the base time period serve as the standard point of comparison. This is very important. ये MCQs में आएगा, the value of the base time period. और याद हो इस पे थ्योरी भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे जहां तक नेसेसरी मैं मोस्ट ऑफ द थ्योरी एक बार रीड भी कर लेता हूँ, एक बार सब गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग. ठीक है. So an index number is what? It is the ratio of two or more time periods are involved. मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास वैल्यूज रहेगी. इट कैन बी प्राइस, इट कैन बी क्वांटिटी, एनीथिंग. मतलब नॉर्मली इन दोनों से रिलेटेड है, प्राइस एंड क्वांटिटी. बट जो प्राइस दी रहेगी वो टू और मोर टाइम पीरियड रिलेटेड दी रहेगी. व्हाट डू यू मीन बाय टू और मोर टाइम पीरियड? नाउ सी, नाउ सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वी हैव से फ्यू ऑब्जेक्ट A, B, C एंड D. ठीक है. यहाँ पे उनका प्राइस दिया है इन 2000. तो से 2000 में A का जो प्राइस था वो 20 रुपीज था, B का प्राइस 30 रुपीज था, C का प्राइस 25 रुपीज था और D का प्राइस 80 रुपीज था. ठीक है. दीज आर द फोर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स A, B, C and D. In 2002, this was the price. Now suppose we are calculating the same object price, but in now 2020, after 18 years. तो जो प्राइस A का 20 था, now it is changes to say 40, 30 था वो हो गया 55, 25 था it will be 45, 80 था वो हो गया 120. So तुम्हारे पास जो प्राइस दिया it is of two periods का दिया हुआ है. एक 2002 का वैल्यू दिया हुआ है, एक 2020 का वैल्यू दिया हुआ है. तो तुम्हारे पास यहाँ पे जो लोवेस्ट ईयर था मतलब 2002, उसे हम लोग बेस ईयर अज्यूम करते हैं. What we assume it is my base year, which is nothing but which act as a standard point of comparison. Standard. अब फिर इसके बीच में हम लोग को कुछ कैलकुलेशन करना है and we'll get the value of index number. अब वो कैसे निकालना that I'll show you. It is nothing but the ratio. अब वो रेशियो क्या रहेगा मैं आगे बताऊंगा, लेकिन बट जरूरी we have only two periods, two or more period. समझो भी 2021 का भी मैंने समझो कि प्राइस निकाल दिया and it is change of 42, 58, 49, 100. तो अगेन 2002 को ही रेफरेंस लेके आई विल कैलकुलेट 2021 का क्या इंडेक्स नंबर रहेगा. तो हमेशा जो 2002 रहेगा इट इज कॉल्ड एज बेस पीरियड. इट एक्ट एज अ स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन. तो जो भी कुछ करेंगे विल कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 2002 ओनली. ठीक है. एंड देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया भी आगे आते रहेंगे तो मैं बताते रहूंगा. बट फिलहाल अभी के लिए देखो जो अपना स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन रहेगा the lowest year price, which is my act as a base year. ठीक है. Now an index time series is a list of index number two or more period of time where each index number employs the same base year. तो जो base year था वो तुम्हारा standard point of comparison था, as I said earlier. Relatives are derived because absolute number measured in some appropriate unit are often of little importance and meaningless in themselves.
If the meaning of relative figure remains ambiguous, it is necessary to know the absolute as well as the relative number. Our discussion of index number is confined to a various types of index number, their uses, the mathematical test, and the principle involved in the construction of index number. Index number are studied here because some techniques for making forecast. तो यहाँ पे तुम्हारे पास index number का basically use क्या है? So we can say it's an application. So where we can use this index number, making forecast or inferences about the figure are applied in terms of index number. In regression analysis that we did, where we can calculate the future or we can predict what can be the value in the next few years. Either the independent or dependent variable or both may be in the form of index number. They are less unwidely than large number and are readily understandable. There are, or these are the two broad type. एक होता है simple और एक होता है composite. ठीक है? The simple index is computed for one variable. तो जिसमें तुम्हारे पास जो one variable रहेगा वो या तो price रहेगा और क्वांटिटी रहेगा, मतलब दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा, या तो प्राइस रहेगा या तो क्वांटिटी, ओनली वन वेरिएबल. वेयर द कंपोजिट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम टू और मोर वेरिएबल. तो जो तुम्हारा कंपोजिट रहेगा उसमें एक नहीं बल्कि डेफिनेटली नाम कंपोजिट है, वी हैव वेरिएबल मोर देन वन, मतलब टू और मोर देन टू. तो यहाँ पे प्राइस रहेगा एंड क्वांटिटी दोनों रहेगा. वी हैव प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी. Most index numbers are composite in nature. तो जनरली जो तुम्हारे पास वैल्यूज दी रहेगी जनरली वो प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ द वैल्यूज आर गिवन इन द क्वेश्चंस, मतलब दोनों चीजें दी रहेगी. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव द बेसिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर. तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर हम लोग अभी मैं जब सम बताऊंगा तो मैं चीजें और क्लियर हो जाएगी. तो इंडेक्स नंबर इज जस्ट वी कैन हैव द कंपैरिजन विथ रिस्पेक्ट टू द बेस पीरियड कि बेस पीरियड से कितना चेंजेस हुआ. छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. समझो मैंने एक ही क्वांटिटी ली ए और मैंने एक बेस पीरियड ले लिया, समझो 2000 नहीं लिखा हूं मैं, बस 2 और एक करंट ईयर चल रहा है समझो कि 2021, मतलब 21 साल, 21 ईयर्स का डिफरेंस है. बेस ईयर में कमोडिटी ए का प्राइस था से 20 रुपीज, कोई भी चीज थी, ए इज एनीथिंग. करंट ईयर में उसका प्राइस हो गया से 46 रुपीज. कितना हो गया? 46 रुपीज. सो कितना चेंजेस हुआ, कितना चेंजेस हुआ? इट इज ऑफ 26 रुपीज का इंक्रीज हुआ. ठीक. इफ आई विल कैलकुलेट इन परसेंटेज, तो परसेंटेज में कैसे निकालूंगा? 46 परसेंटेज इंक्रीज नहीं मैं बोल रहा हूं, आई एम कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ करंट वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू बेस वैल्यू. द परसेंटेज ऑफ करंट वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू बेस वैल्यू. तो 46 is the current value, base value is 20, multiply by 100, 0 and 0 cancel, 2 5s are 10, so 5 6 are 30 and 230, so it is 230, that is 230. तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे इंडेक्स नंबर मिला 230. तो 230 मतलब बेसिकली बेस पीरियड से जो अभी की वैल्यू है कितना चेंजेस हुआ? 230 मतलब ये बताता है कि इनिशियल वैल्यूज बेस ईयर में जो भी वैल्यूज थी, जनरली बेस ईयर को हम लोग 100 एज्यूम करते हैं, आज उसकी वैल्यू 230 हो गई है. 230 मतलब 100 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 230 का मतलब 2.3. तो इसका मतलब बेसिकली जो वैल्यूज बेस ईयर में चाहे जो भी था, ये तो मैंने एक क्वांटिटी लिया, करंट ईयर में 230 मतलब वो 2.3 टाइम्स चेंज हो गया. तो 20 था तो 2.3 मतलब 46 हो गया. अगर 50 रहेगा तो 2.3 अप्रोक्सीमेटली 120 के आसपास हो जाएगा. तो मतलब बेसिकली इंडेक्स नंबर विल फोरकास्ट क्यों कि मतलब फ्यूचर में वैल्यूज कितने टाइम्स होने वाली, मतलब हाउ द वैल्यू विल गेट चेंज, हाउ द वैल्यू विल गेट चेंज. 230 इट मींस 100 का 230 मींस इट इज 2.3 टाइम्स चेंजेस हुआ है. अगर डिवाइड करो एग्जैक्टली डेसिमल में निकालू तो इसका मतलब वी कैन प्रेडिक्ट. तो अगर तुम्हारे पास कुछ क्वांटिटी ए बी सी डी ई है तो यहाँ पे जरूरी नहीं सबका 20 रुपीज ही रहेगा, कोई 80 रुपीज का है, कोई 1000 का है, कोई 4000 का है. तो बस बेसिकली बट द चेंजेस इज व्हाट इट इज 100 to 230. अगर मैंने इंडेक्स नंबर 230 निकाला, इसका मतलब वैल्यू जो चेंजेस हो रहा है वो 2.3 टाइम्स चेंजेस होगा विद द बेस वैल्यू. तो जो भी बेस वैल्यू उस समय की जो भी रहेगी, इट विल गिव यू एन अप्रोक्सीमेट प्राइस इन द करेंट ईयर.
एंड दिस इज यूज्ड टू गेट द इंडेक्स नंबर. बट अगेन इंडेक्स नंबर ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने एक वैल्यू पे डिपेंडेंट रहेगा. तो वी कैलकुलेट सम फ्यू वैल्यूज, मतलब कम से कम मिनिमम 5-6 सैंपल अलग अलग. कमोडिटी ए को भी कंसिडर करेंगे, बी का प्राइस चेंजेस क्या हो रहा है ओवर अ पीरियड, सी का प्राइस चेंजेस क्या हो रहा है ओवर द पीरियड. इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम एवरी टाइम, बट जो भी रहेगा हम लोग कम से कम 5 या 6 क्वांटिटी लेंगे, उसका ऑन एन एवरेज निकालेंगे कि क्या रहेगा. एंड दैट विल गिव यू द इंडेक्स नंबर कि हाउ द प्राइस इज गेटिंग चेंजेस. इट इज 230 है कि 250 है कि 100 है कि 190 है, वॉट एवर इट इज. ठीक है. बट हमेशा देखो बेस ईयर का जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसका इंडेक्स नंबर 100 होता है, एंड एवरी ईयर का बेसिकली वो चेंज होता है. फिर कंपैरिजन कर, जैसे मैंने यहाँ पे 230 निकाला, एक ही कमोडिटी कंसिडर किया था, ए बी सी डी रहेंगे तो अलग अलग मेथड. आई विल टेल यू. समझो कि 2000 के बाद 2002 में 120 हुआ, इसका मतलब 1.2 इंक्रीज हुआ रहेगा. समझो 200 हो गया नेक्स्ट ईयर, तो 100 से 200 मतलब 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ. मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू उसका सीधे प्राइस डबल हो गया. आफ्टर से फ्यू मोर इयर्स नाउ द वैल्यूज रिप्रेजेंट 300, मतलब इसी बेस को लेके. तो 100 से 300 हुआ मतलब वैल्यूज 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई, मतलब 3 टाइम्स चेंज हो गई. मतलब जो भी वैल्यूज थी उसका 3 टाइम्स अभी उसका प्राइस है. से अगर कोई वैल्यू समझो कि 1000 रुपीज की थी उस ईयर में, बेस ईयर में, नाउ अगर इंडेक्स नंबर 300 हो गया तो उसका मतलब वैल्यू 3 टाइम्स चेंजेस हुआ है. इसका मतलब 1000 की चीज नाउ यू विल गेट इन 3000 रुपीज द सेम प्राइस. सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इंडेक्स नंबर. ठीक है. There are few issues involved while selecting the quantity. This is all theory. This is all theory. एक बार रीड कर लेंगे, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब ये थ्योरी एग्जाम में जाएगा, बस एक बार रीड करके रख लेना. लेकिन ठीक है. अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर मतलब अभी हम लोग ने ये पढ़ा कि इंडेक्स नंबर होता क्या. इट इज द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी. It is the ratio of two quantity which we are getting from two different time period. From two different time period. Now we'll construct index number. अब यहाँ पे हम लोग को index number calculate करना है. सबसे पहले we'll start with simple. As I said, यहाँ पे दो index number है, मतलब एक simple है और एक composite है. Simple में you will have only one things, one variable, one thing, one variable. या तो price दिया रहेगा तो quantity दिया रहेगा. But in composite you will have both the thing, price as well as quantity, दोनों चीज दिखेगी. ठीक है. So now let's start with index number का formula, that is construction of index number. Construction of इंडेक्स नंबर. देखो सबसे पहले मैं एक क्वांटिटी लेता हूं और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. सपोज आई एम टेकिंग सिंपल में सिर्फ मैं प्राइस कंसीडर कर रहा हूं. प्राइस वी हैव टू प्राइस, एक P0 रहेगा और एक P1 रहेगा. P0 इज प्राइस इन बेस ईयर. P1 is price in current year. दो मेथड है. सबसे पहला मेथड है प्राइस इंडेक्स नंबर. इसको रिप्रेजेंट करते P01, नीचे लिखते हैं सफिक्स P01. P01. The formula is, it is P1 upon P0 into 100. Normally it is expressed in 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. It is P1 upon P0 into 100. P1 upon P0 into 100. So this is what we have the price index number. अगर सिर्फ एक ही कमोडिटी दी है तो उस कमोडिटी का प्राइस इन करंट ईयर क्या है, उस कमोडिटी का प्राइस बेस ईयर इन क्या है, into 100. So this is what we have index number. So P01 is equal to P1 upon P0 into 100. अब now we'll calculate the index number. अभी तक मैंने सिर्फ प्राइस कंसिडर किया. अब इसे दो मेथड से कैलकुलेट करना. The first method is called as simple aggregate method.
and the same problem I'll do with the average of price relative. अब दोनों में डिफरेंस क्या था सुनो, एक सम को मैं दो वे से करूंगा और दोनों से आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा, मतलब दोनों आंसर एक दूसरे के अप्रोक्सीमेट रहेंगे, हैविंग द सेम प्रॉब्लम ओनली, सेम सम रहेगा तो भी। तो एग्जाम में किस मेथड से दिया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सिंपल एग्रीगेट मेथड होता है क्या तुम्हारे पास, सिंपल एग्रीगेट मेथड में तुम्हारे पास अगर तुम्हें प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना दैट इज P01, एग्रीगेट का मतलब होता है एक्यूमुलेट होना, एड ऑल वैल्यूज। तो P01 का फॉर्मूला इट इज सम ऑफ P1 sum of P0 into 100, this is sigma, सिग्मा और समेशन दोनों वर्ड चलेगा। तो P01 का फॉर्मूला समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100, ऊपर हमेशा करंट प्राइस का एडिशन करना, नीचे बेस प्राइस का एडिशन करना इंटू 100। छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ कमोडिटीज दी है, से A B C D N E, जैसे मैंने एक कमोडिटी दी थी A, ऐसी मेरे पास यहाँ पे 5 अलग अलग कमोडिटीज है, उनका प्राइस इन 2000 मैंने चेक किया। और याद रखो हमेशा तुम्हारे पास टाइम जोन डिफरेंट रहेंगे, मतलब एक बेस ईयर रहेगा और एक करंट ईयर, मतलब दो टाइम पीरियड का वैल्यू दिया रहेगा ऑफ द सेम कमोडिटीज। एंड सेकंड द प्राइस इन 2005, this is my P0, this is my P1. So suppose commodity A B C D E का प्राइस इन 2000 which is act as my base year या बेस ईयर प्राइस, हम इससे जो लोवेस्ट ईयर रहेगा वो बेस ईयर रहेगा, बेस ईयर प्राइस। करंट ईयर प्राइस इन 2000 20 35 40 60 and price in 2005 say 30 45 42 42 70। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है और मुझे बोला है कि इसका इंडेक्स नंबर निकालो, मतलब हाउ द वैल्यू चेंजेस, मतलब कितना चेंजेस हुआ है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ एक वैल्यू को कैलकुलेट करूं, सिर्फ एक कमोडिटीज ए पे फोकस करूं, तो सिर्फ ए का अगर मुझे चेंजेस चेक करना है कितना चेंजेस हुआ है ओवर द पीरियड, तो सिर्फ अगर ए का मैं निकालूंगा तो ए का प्राइस 20 है एंड नाउ 2005 में इट इज 30 हो गया। तो करंट ईयर प्राइस थ्री बाय टू विच इज 1.5 इंटू 100 150। तो इंडेक्स नंबर 150 है, मतलब वैल्यूज ए का बेस ईयर से करंट ईयर में, बेस ईयर से करंट ईयर में इट इज चेंजेस, मतलब जो 100 था बेस ईयर का 100 रहता है तो इट बिकम्स 150 जनरली, मतलब जो वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है। तो 100 से 150 इसका मतलब बेसिकली वैल्यू अगर 150 डिवाइड बाय 100 करो इट इज 1.5 टाइम्स, मतलब जो बेस ईयर की वैल्यूज है करंट ईयर में उसकी 1.5 टाइम्स हो जाएगी। सिर्फ मैंने ए को कंसीडर किया, सिर्फ ए को, बाकी कमोडिटीज को नहीं लिया मैंने। तो जो बेस ईयर की वैल्यूज है वो 100 है, करंट ईयर की वैल्यूज 150 है, तो 100 से 150 ने मतलब 1.5 टाइम्स, मतलब जो बेसिकली बेस ईयर की जो भी वैल्यूज है वो 1.5 टाइम्स चेंज हुआ है। ठीक है, अब इसको अदर वे में भी कैसे समझेंगे वो भी एक चीज समझ लो। अगर इंडेक्स नंबर 100 है, नाउ इट इज 150, 100 से 151 वैल्यूज बढ़ गई, इंडेक्स नंबर इंक्रीज हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ है
50 से। हंड्रेड और 150 कितने से चेंजेस हुआ है? 50 से इंक्रीज हुआ है। तो 50 से इंक्रीज हुआ मतलब 50% से इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब बेस क्वांटिटी 50% इंक्रीज होके करंट ईयर में हो गई है। तो मतलब जो 20 था वो 30 हुआ। तो परसेंटेज इंक्रीज अगर कोई पूछा, परसेंटेज इंक्रीज कैसे नहीं, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे? जो डिफरेंस आएगा, ये 100 है 150, कितने का चेंजेस हुआ? 50 का। तो 50% इंक्रीज हुआ है। तो मतलब इंडेक्स नंबर विल टेल यू कि कितने परसेंट वैल्यू चेंजेस हो रही है, इंक्रीज कितना परसेंट हुआ। समझो अगर मैंने बोला कि यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 120 है, इंडेक्स नंबर 120 है, इसका मतलब डिफरेंस कितना? 20 का। मतलब बेसिकली द इंक्रीज इन परसेंटेज इज 20%। इट इज 80% इंक्रीज। मतलब बेसिकली इंडेक्स नंबर विल टेल यू कि कितने परसेंटेज चेंजेस हो रहे हैं, एंड इट इज नॉट ऑलरेडी ऑलवेज इंक्रीज ही होगा। समझो अगर 100 है और मैंने इंडेक्स नंबर करंट ईयर का निकाला 90 हुआ, 100 से 90 मतलब इट विल डिक्रीज बाय 10%। So now it is always an increase or decrease. मतलब you can easily calculate how much is the percentage change in the value, how it is the changing. ठीक है, तो जो डिफरेंस रहेगा दैट विल टेल यू कि इतना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। और हमेशा एक चीज है ना, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज टेकन एज 100 और करंट ईयर का तो कैलकुलेट करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर, वी आर कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर। ठीक है, तो ये मैंने एक वैल्यूज का रेफरेंस लिया। अभी मुझे सब वैल्यूज को कंसिडर करना है, ए बी सी डी। और अगर तुम सब वैल्यूज को अगर कंसिडर करोगे और तुम्हें इंडेक्स नंबर निकालना, देयर आर टू मेथड, एक सिंपल एग्रीगेट मेथड है और एक है एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले विल कैलकुलेट, अगर एग्रीगेट बोला, एग्रीगेट मेथड, तो इट इज सम ऑफ P1 अपॉन सम ऑफ P0। तो ये तुम्हारे पास बेस ईयर प्राइस है, ये तुम्हारे पास करंट ईयर प्राइस है। विल गेट एडिशन, will get addition. So I'll do addition. $185। तो ये मेरा P0 का एडिशन है, तो दिस रिप्रेजेंट सम ऑफ P0। एंड दिस इज P1 का एडिशन। $229। तो मतलब मैंने प्राइस 2000 मतलब बेस ईयर की प्राइस का एडिशन किया विच इज 185 एंड करंट की प्राइस का एडिशन का 229। मतलब रैंडमली मेरे पास 5 कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने कोई शॉप लिया, तो शॉप में मेरे पास ए, समझो ग्रोसरी में मैंने कंसिडर किया एक चीज को, बी समझो मैंने कि सोप जो है उसमें से कोई एक कंसिडर किया, हर एक में से मैंने एक एक सैंपल ले लिया। तो ऑन एन एवरेज चेक करो कि शॉप का जो वैल्यूज है कमोडिटीज का, 5 अलग अलग कमोडिटीज, तो उनका प्राइस और करंट के प्राइस में हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज या हाउ मच परसेंट डिक्रीज हो वो निकालना है। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ परसेंटेज ओनली। इट इज नन अदर देन दिस, परसेंटेज ये देखा जाता है, बट इसमें वैल्यू हमेशा 100 से ज्यादा आती है, ये भी एक चीज याद रखना। तो 185 एंड 229 आई वांट टू कैलकुलेट कितना इंडेक्स नंबर आएगा, दैट इज P01 and it is simple only because we are only dealing with the one variable, that is price. So what is P01? It is sum of P0 into 100. This is my index number, sum of P1 upon sum of P0 into 100.
229, 123.78. So we got this index number P01, 123.78. So what is 123.78? What this figure represent? If the values is more than 100, मतलब 100 से अगर ज्यादा, इसका मतलब इंक्रीज हुआ रहेगा. कितने से इंक्रीज हुआ रहेगा? अगर 123.78 है तो 100 के कितना अबव है? 23.78. तो 23.78% से प्राइस इंक्रीज हुआ है. जो कमोडिटीज प्राइस इन 2000 है, प्राइस इन 2005 इज क्लोज टू 24% इंक्रीज हुआ है. क्लोज टू 24% क्या रहा है? इंक्रीज हुआ है. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव द सिंपल एग्रीगेट मेथड. इज दैट क्लियर? ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया. ठीक है, अब सेम क्वेश्चन आई विल डू विद अनदर मेथड, दैट इज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव. व्हाट इज प्राइस रिलेटिव? It is P1 upon P0 into 100. P1 upon P0 into, मतलब इसमें समेशन वर्ड नहीं आता. P1 मतलब जो भी कमोडिटी तुम कंसिडर करोगे उसका प्राइस करंट ईयर का, उसका प्राइस बेस ईयर का इंटू 100. यहाँ पे मेरे पास 5 कमोडिटी है तो 5 बार प्राइस रिलेटिव निकालेंगे एंड देन विल फाइंड इट्स एवरेज. प्राइस इन 2000, ठीक है. Here we'll calculate the price relative of each year. Price relative is also called as index number only, just the different name only. Yeah? Here we are calculating for each commodity. $30 upon 20 into 100. 45 इंडिविजुअल वैल्यूज का निकालेंगे. पहले ए का निकालेंगे. ए का करंट डे प्राइस अपॉन बेस डे प्राइस into 100. I think I should give a gap over here. So calculation. C D $42. Now यहाँ पे will calculate for the price relative for commodity C. तो we are calculating for individual की. इंडिविजुअल में कितना चेंजेस हुआ है? Okay, we'll calculate for each value. 30 by 20 into 100, that's 150. 45 by 35, which is 128.57. 42 by 40, 105. 42 by 30, 140, and 70 by 60.
116.6। तो मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव, इन शॉर्ट इंडेक्स नंबर निकाला। मुझे भी निकालना ओवरऑल इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, ओवरऑल दैट इज P01। ओनली द मेथड इज चेंज, वो सिंपल एग्रीगेट था, ये प्राइस रिलेटिव मेथड है, प्राइस रिलेटिव मेथड। तो इसमें तुम्हारे पास क्या करते हैं, वी कैलकुलेट द एवरेज। तो जो भी तुम्हारे पास प्राइस रिलेटिव आया है, जितने भी टर्म है डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो हर एक वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, मतलब विल डू एडिशन ऑफ ऑल एंड देन विल डू द एडिशन एंड देन विल डू द सब डिवीजन बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। So I'll do the addition 150 plus 128.57 0.6. It is 640.17. And how many terms? 1, 2, 3, 4, 5. 128 point. तो यहाँ पे we did with the other method price relative, but approximate same है, मतलब प्लस माइनस 5 का is not the major changes। हाँ चलेगा, तो मेथड अलग रहेगा तो डेफिनेटली आंसर भी सेम क्वेश्चन का अलग ही आएगा। इसमें ऐसा नहीं कि सेम आएगा सेम क्वेश्चन का, बट ये है कि यू विल हैव एन आइडिया कि हाउ द वैल्यू चेंजेस ओवर द पीरियड। तो जो फर्स्ट मेथड था वो अलग मेथड था जिसमें सिंपल एग्रीगेट मेथड यूज किए थे। द अदर मेथड इज द डिफरेंट मेथड वेयर वी यूज द प्राइस रिलेटिव, वी कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर फॉर ईच कमोडिटीज एंड देन आई टुक द एवरेज। फर्स्ट में पहले हमने सबका टोटल कर लिया और लास्ट में फिर इंडेक्स नंबर निकाला फर्स्ट मेथड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू चेंजेस फॉर 24%, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली सेम 28%। तो इट विल गिव यू एन रफ आइडिया अबाउट कि हाउ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ओवर द डिफरेंट टाइम पीरियड, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव द प्राइस इंडेक्स नंबर। सिंपल सा फॉर्मूला है प्राइस इंडेक्स नंबर का, जैसे मैंने यहाँ पे दोनों लिखा। अगर प्राइस रिलेटिव बोला इट इज P1 अपॉन P0 इंटू 100, मतलब करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू 100। इफ आई एम गिविंग यू एग्रीगेट मेथड तो सेम फॉर्मूला बस समेशन, मतलब विल डू द एडिशन ऑफ ऑल, सम ऑफ P1 अपॉन सम ऑफ P0 इंटू 100, ठीक है। सो हियर वी हैव द फॉर्मूला। इन्होंने P1 जो है P1 PN लिखा है, दैट डजंट मेक एनी चेंजेस। हाँ, तो अगर मैं P1 बोल रहा हूँ इसका मतलब वो करंट ईयर प्राइस है, और बुक में PN लिखा है मतलब वही करंट ईयर प्राइस ही है, ठीक है। क्योंकि 12th में जब तुम लोग पढ़ोगे ना इट इज P1 लिख कर आएगा जनरली, PN नहीं। तो एक ही लेटर याद रखो, कंफ्यूजन मत रखो फिर, ठीक है। तो इट इज PN अपॉन P0। इफ यू एक्सप्रेस रेशियो तो भी प्राइस रिलेटिव है, और अगर एक्सप्रेस इन 100 मतलब परसेंटेज में करेंगे तो भी प्राइस रिलेटिव है। बट जनरली हम लोग प्राइस रिलेटिव परसेंटेज में ही निकालते हैं, तो हमेशा 100 का मल्टीप्लाई करना है। P1 अपॉन P0 इंटू 100। क्वांटिटी जैसे प्राइस अगर सिंपल दिया रहेगा सिर्फ प्राइस का, तो सेम थिंग वी हैव द क्वांटिटी। क्वांटिटी का फॉर्मूला रहेगा इट्स अ Q1 अपॉन Q0। अगर इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो Q01 is quantity index number which is Q1 upon Q0 into 100. And then we have value index number V01 which is P1 Q1 upon P0 Q0 into 100. वैल्यू इंडेक्स नंबर में तुम्हारे पास प्राइस और क्वांटिटी दोनों दिया रहेगा, प्राइस भी दिया रहेगा और क्वांटिटी, मतलब इट इज कंपोजिट, मतलब दोनों वैल्यूज दी रहेगी। तो तुमने यहाँ पे 3 फॉर्मूले पढ़े,
ठीक है, एक प्राइस इंडेक्स नंबर, एक क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड एक वैल्यू इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। ठीक है,